اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ پرنور ساعتیں عطا فرمائی ہیں اور جمعۃ الوداع روزہ رکھنے کا موقع بھی عطا فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہیں انسان جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق اور طاقت سے ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اسے روانہ کیا ہے۔ آج دعا ہے رب کائنات، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اللہ ہمارے روزے رکھے، اللہ ہمارا قرآن مجید پڑھنا، سننا، سنانا، عبادات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اسی طرح آئندہ جوش اور جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جو آیت بینہ تلاوت کی ہے، آج کا موضوع تو یہ نہیں بنتا تھا، موضوع جمعۃ الوداع کا تھا، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حالات کے پیش نظر آیت بینہ تلاوت کی ہے۔ اسی کے ضمن میں دو چار باتیں عرض کروں گا۔ سامعین محترم، اسی ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں، اسی آخری عشرے میں ہم نے دو چار خبریں سنی ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی۔ ان میں سے آخری ہی ایاموں میں ایک عورت ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایک مرد ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تقریباً 4 آدمی منظر عام پر آئے ہیں، تو اسی حوالے سے پیغام پہنچانا لازمی اور فرض سمجھتا ہوں۔ آج ہر بچہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت تقریباً ہر بچے کو یاد ہے۔ جس بچے کو گھٹی لگتے ہوئے یا رسول اللہ کی زبانیں چلتی رہی ہوں، درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہوں، وہ یقیناً اس موضوع پر بہت ہی زیادہ اس کا ایمان قوی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ختم نبوت ایمان کا جز ہے۔ ایمان کا جز نہیں، ایمان ہی کا حصہ ہے۔ اگر ختم نبوت پر انسان کا کامل یقین نہیں ہے تو وہ انسان کامل مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں یہاں سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں صحابی رسول کی، پہلے بھی تقریباً سنا چکا ہوں۔ بار بار سنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایمانی قوت کمزور ہو چکی ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کی غیرت، محبت جاگ جائے۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، نام ہے حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ حضرت عمیر بن عدی کی وہ صحابی ہیں، آنکھوں سے نبینا ہیں، بظاہر دیکھ نہیں سکتے۔ اب حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں، ظاہری زمانہ مبارکہ میں، ویسا تو سارا زمانہ آقا کریم کا ہے، ایک عورت نے حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی، نازیبا الفاظ کہے۔ اب حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ فلاں عورت فلاں شہر کے رہنے والی حضور کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہتی ہے اور لوگوں کو سناتی ہے،
उमैर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम उठाई और मन्नत मानी, या बारी ताला तेरा महबूब बदर से वापस आ जाए, हुजूर जंग पर गए हुए थे, तेरा महबूब बदर से वापसी आ जाए, इस औरत को मैं अपने हाथों से वासिल जहन्नम करूँगा, इस औरत को मैं खुद मारूंगा, कत्ल करूँगा। अब आका करीम अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ़ लाए, हज़रत उमैर बिन अदी नबीना सहाबी को ख़बर पहुँची कि हुजूर तशरीफ़ ला चुके हैं खैरियत से। अब हज़रत उमैर बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आधी रात का वक्त है, अपने घर से उठते हैं, तलवार उठाते हैं, सीधा उस औरत के घर की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ पर एक बात है कि हज़रत उमैर बिन अदी नबीना है, बज़ाहिर देख नहीं सकते, लेकिन ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ, नबीना होकर इन्हें किसने बताया कि उस औरत का घर किस जगह है? इन्हें किसने बताया कि उस औरत का घर इस रास्ते पर है? नबीना होकर रात के अंधेरे में चल कर जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि इंसान की आंखें बज़ाहिर तो हों, लेकिन दिल की आंखें इंसान की काम ना करें तो ऐसी आंखों का कोई फायदा नहीं है। इंसान दिल का अंधा नहीं होना चाहिए, आंखों का अंधा हो तो कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि जो दिल का अंधा होता है फिर उसे हक बात समझ नहीं आती, फिर उसे सच समझ नहीं आता, फिर उसे हक कड़वा लगता है और हमेशा यही कहता रहता है कि मौलवी हमेशा ही सख्त बातें करता है, फिर हमेशा किसी को हक न समझ नहीं आता। जब दिल की आंखें बंद हो जाएं, जब इंसान दिल का अंधा हो जाए, लेकिन जब दिल की आंखें खुली हो, बज़ाहिर अंधा हो, तो फिर वो हर जगह हर मकाम पर हुजूर ही की बात करता है, हर जगह हुजूर की मोहब्बत की बात करता है। अब हज़रत उमैर बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबीना साहबी अपने घर से रवाना हुए, उस औरत के घर पर पहुंचते हैं। पहुंचकर क्या करते हैं, अब जब उसके घर में दाखिल हुए ना, अब हज़रत उमैर बिन अदी को पता चला कि इसके इर्द गिर्द इसके बच्चे सोए हुए हैं, इसके घर वाले सोए हुए हैं। हज़रत उमैर बिन अदी उसकी चारपाई के करीब पहुँचे, उस औरत की चारपाई के करीब पहुँचे। जब आप करीब पहुँचे तो आपने हाथ मारकर देखा भाई ये अकेली सोई हुई है, तो आपको पता चला कि इसके साथ इसका बच्चा भी सोया हुआ है। हज़रत उमैर बिन अदी ने ये नहीं कहा भाई ये बच्चा तो गुस्ताखा का है, इसे भी मार देता हूँ। आपने उस बच्चे को उठाया, दूसरी चारपाई पे सुला दिया। अब हज़रत उमैर बिन अदी ने तलवार निकाली, तलवार निकाल कर उसके सीने में दी। अब उसके सीने से तलवार गुजरती हुई पीछे से निकली, वो औरत वासिल जहन्नम हो गई, मर गई। अब हज़रत उमैर बिन अदी वहाँ से भागे नहीं, सीधा मस्जिद नबी में आए। सीधा कहाँ आए? जहाँ इमामुल अंबिया तशरीफ़ फरमाते हैं। अब जब हज़रत उमैर बिन अदी वहाँ तशरीफ़ लाए, सुबह की नमाज का वक्त था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को नमाज पढ़ाई, उमैर बिन अदी ने पीछे नमाज अदा की। अब इस वाक़े का किसी को कोई पता नहीं, सुभान अल्लाह कह दी। इस वाक़े का, इस बात का किसी को कोई पता नहीं, लेकिन जब हज़रत उमैर बिन अदी पिछली आखिरी साहब में नमाज पढ़कर सलाम फेरते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम सफ़ों में देख रहे हैं उमैर बिन अदी कहाँ है, उमैर बिन अदी कहाँ है, मेरा आशिक कहाँ है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा, हुजूर ने फरमाया उमैर बिन अदी आगे आओ। हुजूर के सामने आए, हुजूर ने फरमाया उमैर बिन अदी मेरी दुश्मना को कत्ल कर दिया है, मेरे गुस्ताखा को कत्ल कर दिया है। अब इस वाक़े का किसी को कोई नहीं पता, मेरे नबी तो जानते हैं। लोग कहते हैं नबी को किसी चीज़ का पता नहीं। मैंने कहा बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अब हुजूर पूछ रहे हैं मेरी गुस्ताखा को कत्ल कर दिया है, या रसूलुल्लाह कत्ल कर दिया है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम खामोश हुए। उमैर बिन अदी के दिल में ख्याल आया शायद कि मैंने हुजूर से बगैर पूछे इस औरत को कत्ल किया है, मावराए अदालत, अदालत से रजू भी नहीं किया, अदालत को कहा भी नहीं, अदालत तो हुजूर की थी, तो अब शायद कि हुजूर मुझे कत्ल करवा देंगे। हज़रत उमैर बिन अदी के दिल में ये ख्याल आया। हुजूर
हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगे जुमला इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, तुम कहते हो ये नबीना है, ये नबीना नहीं है। तुम कहते हो उमैर बिन अदी की दीद नहीं पड़ती, फरमाया इसकी दिल की आंखें काम कर रही हैं। फरमाया देखो मेरे दुश्मन को किस तरह कत्ल करके आया है। अब आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की है मावराए अदालत, जिसने दुनिया में जन्नती देखना हो मेरा गुलाम उमैर बिन अदी को देखना। अब यहाँ पर हजरत उमर ने एक सख्त जुमला कह दिया, वो हदीस की रिवायतों में मिलता है। हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह, नबीना होकर एक औरत को कत्ल कर दिया है, हुजूर इन्हें सजा मिलनी चाहिए। आपको बताया ही नहीं, आपकी अदालत में आया ही नहीं, आपके पास आता, आपको बताता, फिर आप इजाजत देते, फिर ये जाकर औरत को मारता। अब जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये जुमले हजरत उमर के सुने तो हुजूर ने फरमाया, या उमर क्या बात करता है, तुझे पता नहीं इसने अपने नबी के इश्क में उस औरत को कत्ल कर दिया है। तुझे पता नहीं इसने अपने नबी की मोहब्बत में औरत को कत्ल किया है। जिस तरह लोग कहे ना, हम कोई बात कोई कहे हक की तो फिर कहते हैं मौलवी हर जुमे सख्त बात करता है, मौलवी इसी तरह कहता है। मैंने कहा ये बात कोई आज की नहीं, ये कहते रहते हैं, ये कहते रहते हैं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के मुसलमानों को पैगाम दिया, फरमाया क़यामत तक जो मेरी इज्जत और नमूस पर पहरा देगा उसे कुछ ना कहना, वो मेरा गुलाम होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात, मुगल इमाम हजर ने लिखा है इस बात को कि मुगल 40,000 का मजमा था, मुगल खड़े थे, ईसाई पादरी भी मौजूद थे, मौलवी भी मौजूद थे। अब मुगल ने खड़े खड़े तकरीर की, तकरीर में हुजूर के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे। अब जब उसने अल्फाज कहे इमामुल अंबिया के बारे में, साथ कुत्ता बांधा हुआ था, वो भी सोने की जंजीरों के साथ। आपको पता है जो बड़े लोग होते हैं उनके कुत्ते भी आला किस्म के खाने खाते हैं। गरीब को अगर रोटी ना मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो अमीर होता है उसके कुत्ते भी आला किस्म के खाने खाते हैं। अगर बीमार हो जाए कुत्ता तो उसे भी लोग पूछने चले जाते हैं, लेकिन गरीब बीमार हो जाए, बीमार जब मर जाए तो जनाजा उठाने वाले भी चंद आदमी होते हैं। तो अब हजरत ये मुगल तकरीर कर रहा था, तकरीर करते करते इसने थोड़ी सी बात इमामुल अंबिया के बारे में की। कुत्ते ने जंजीरों को झटका दिया, उसकी तरफ उछला। तो अब इसने ज्यादा जब लंबी बात शुरू की ना, कुत्ते ने जंजीरों को तुड़वाया, तुड़वा कर आकर उस गुस्ताख के पास, उस मुगल के पास, मौलवी के पास एक थप्पड़ रसीद किया। क्या किया? आकर थप्पड़ रसीद किया। तो अब जब थप्पड़ रसीद किया, बाकी जो उसके साथ उसके दोस्त खड़े थे उन्होंने कुत्ते को पकड़ा, जाकर बांध दिया। तो अब लोग उसे कहने लगे, यार तूने क्या बात कह दी कि कुत्ते को गुस्सा आया, तुझे थप्पड़ मार दिया कुत्ते ने। उसने कहा ये कुत्ता बड़ा गरीब और नफस है, ये बड़ा गैरत वाला कुत्ता है। ये क्या है? मैंने तकरीर करते करते इसकी तरफ इशारा कर दिया, इसकी गैरत ने बर्दाश्त ना किया कि मेरा इशारा उसकी तरफ गलत हो गया, इसलिए उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो अब फिर तकरीर शुरू हुई, तकरीर फिर शुरू हुई। तकरीर करते करते फिर इमामुल अंबिया के बारे में उसने जुमला कह दिया। उसने सोचा यहाँ कोई हुजूर का गुलाम तो खड़ा नहीं जो मेरी गर्दन उड़ा दे। यहाँ खड़े तो सारे मुगल हैं और सारे ईसाई खड़े हैं, सारे हमारे हो जाएंगे, तो हमने किसी ने कुछ कहना तो है नहीं। जब इसने दोबारा बात की तो अब उन्होंने कुत्ते को, मेरा जो वजदान ख्याल कहता है कि उसके पाँव भी जंजीरों के साथ बांध दिए होंगे, उसके गले के अंदर भी जंजीर डाल दिया होगा कि कहीं ये फिर ना आ जाए। जिस तरह आज कोई सच्ची बात कहे ना तो फिर रोका जाता है, फिर उसे उसके ऊपर दबाव दिया जाता है ये फिर ना कहे, तो इसी तरह उसके साथ भी किया होगा। तो अब उस कुत्ते ने जंजीरों को फिर तुड़वाया। बैठे हुए बाबा, अब उस कुत्ते ने जंजीरों को फिर तुड़वाया, तुड़वा कर अब से थप्पड़ नहीं लगाया, आकर गले को दबोचा। आकर क्या किया? आकर क्या किया? गले को दबोचा, उसे वासिल जहन्नम करके रख दिया। अब जब ये मर गया, 40,000 ततारी और ईसाई खड़े थे,
सारे देखकर कलमा पढ़ने लगे, सारे देखकर कलमा पढ़ने लगे। ये है हुजूर का दीन कि अगर कोई भी गुस्ताखी करे, अगर उसका जवाब हुजूर की इज्जत के लिए कोई मौलवी, कोई पीर, कोई आदमी ना बोले तो अल्लाह कुत्तों से भी नबी की इज्जत पर पहरा दिलवा देता है। अल्लाह हुजूर की इज्जत के लिए कुत्तों को भी पहरेदार बना देता है। भाई तुम बोलो या ना बोलो, ये कुत्ते मेरे नबी की इज्जत के वफादार हैं। यहाँ पर आखिरी बात मैं बात करके इजाज़त चाहता हूँ। आज मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों को आवाज़ देकर कह रहा है, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, कोई मोहम्मद बिन कासिम का जानशी नहीं है। 57 इस्लामी ममालिक हैं पर किसी की तरफ से जवाब नहीं है, सारे मुर्दे बने हुए हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया। आज वो मुसलमानों की बच्चियाँ वो दीवारों पर लिख कर कहती है कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आने वाला, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आने वाला। आज हमें इस पाकिस्तान में खुलेआम इबादत करने की भी इजाज़त है, रोज़ा रखने की भी इजाज़त है। वो मुसलमान इबादत करने के लिए आए तो वो उस पर जुल्म करते हैं, मुसलमानों पर इबादत नहीं करने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, कुरान नहीं पढ़ने देते। हमारे पास सब कुछ है, बावजूद इसके हम दीन से दूर क्यों हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। हमें सब कुछ मिला है, आसानी से बगैर कुछ लगाए मिला है, फिर भी हम दीन से दूर हैं, फिर भी हम हुजूर की मोहब्बत से दूर है। वजह क्या है? हमारे ईमान कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे अंदर मोहब्बत और गैरत ख़त्म हो चुकी है। कोई बंदा अगर दीन के लिए हक बात कहता है तो वो फिर शिद्दत पसंद बनता है। शिद्दत पसंद नहीं, वो मोहम्मद अरबी का गुलाम है। हलाकू खां का दौर था, एक कादरी फ़कीर थे, कादरी बुजुर्ग, उसके पोते के पास हुजूर अलैहिस्सलाम कादरी फ़कीर के पास आए, कहा भाई उसके पास जाओ, हलाकू खां के पोते के पास, उसे कहो मैं हुजूर का कलमा पढ़। उसे क्या कहो? हुजूर का कलमा पढ़। पता है आपने हिस्ट्री तारीख पढ़ी है भाई, ये खास जो थे हलाकू, ये बड़े जालिम जाबिर थे, इन्होंने मुसलमानों को बहुत जुल्म पहुँचाया, बहुत तकलीफें दी। अब कादरी फ़कीर उस हलाकू खां के पोते के पास जब पहुँचा ना, वो शिकार करके आ गया, शिकार करने गया था, वापसी आया, उसके पास उसके साथ शिकारी कुत्ते भी थे। आते हुए उसने देखा भाई ये जो खड़ा है ये फ़कीर है, कलमा गो है, हुजूर का गुलाम है। उसने आते हुए ना सलाम ना दुआ, उसने कहा भाई ओ फ़कीर मुझे एक बात बता, मेरे कुत्ते की धूम अच्छी या तेरी दाढ़ी अच्छी? अब ज़रा इस पर तवज्जो देना। जेको अब पोछा दे हूँ आगे मेरे कुत्ते का पोछा अच्छा या तेरी दाढ़ी अच्छी? अब आगे अल्लाह का फ़कीर था, उसने कहा इससे दाढ़ी की इज्जत का क्या पता, इससे मैं जवाब देता हूँ। अब अल्लाह के फ़कीर ने फरमाया अगर ये तेरा कुत्ता तेरा फरमा बरदार है, तुझे राज़ी कर लेता है, तो ये तेरा कुत्ता अच्छा। बात नहीं समझे? अगर ये तेरा कुत्ता तुझे राज़ी कर लेता है, तू इसका मालिक है, तू इससे राज़ी हो जाता है, तो तेरे कुत्ते की दुम अच्छी। अगर मैं अपने मालिक को राज़ी नहीं कर सकता, मेरा मालिक मुझसे नाराज़ है, तो फिर मैं निकम्मा ये अच्छी। आज हमारी हालत भी यही है। लोग कहते हैं मैं दाढ़ी नहीं रखी हुई, क्यों नहीं रखी हुई? फिर वही कुत्ते की दुम अच्छी, रोजे नहीं रखे हुए, फिर वही भी अच्छे, फिर वही काफिर ही अच्छे। हम मुसलमान होकर इज्जत ना करें। आज जुमअतुल विदा है, आज क्या है? अगर आज के दिन रोज़ा ना होता, बाज़ारों में जाकर रश देखते, आपको बाज़ार के बाज़ारें और पार्कें भरी हुई नज़र आती, लेकिन ईद के दिन आप ज़ुहर की नमाज के वक्त मस्जिद की हालत देखना। और आज भी आप देख रहे हैं, रोज़ा ना होता तो कहते भाई मौलवी रोज़ा खा गए, नहीं रोज़ा बन गया तो फिर लोग आए नहीं। बताओ क्या वो मुसलमान नहीं है जो बाज़ारों और गलियों में घूम रहे हैं? वो मुसलमान नहीं है जो अपने घरों में सोए हुए हैं? दीन आसान मिल गया, किसी को दीन की कदर का क्या पता। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल ईद उल फित्र की जमात 7:30 बजे अदा की जाएगी। कितने बजे? इंशाअल्लाह राइट टाइम 7:30 बजे ईद उल फित्र की जमात अदा की जाएगी। मैं तो इस कायल हूँ कि फजर की नमाज पढ़ के 20 मिनट आप बैठ जाएं,
حمید کی نماز پڑھا دیں، ہم تو اس قائل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب لیٹ کر دیں، بابا تو صبح ہو۔ آج ہماری حالات کیا ہوں گے؟ چاند رات ہے نا، آج بازاروں میں ہم جائیں گے، جو پورا مہینہ روزے رکھے، پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کی، نوافل پڑھے، بازاروں میں جا کر عورتیں بھی ایک ساتھ، مرد بھی ایک ساتھ، رش لگا ہوا ہوگا۔ آخر ایک مہینے کی کمائی کی ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے ختم تو کرنی ہے ہم نے۔ میرا گمان یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ بھی تو ہم ہیں کہ چاند رات ہم بازاروں میں عورتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بازاروں میں جا کر دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے، لیکن مسلمان مرد عورت ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور مسلمان اپنی بیوی کو لے کر چوڑیاں پہنانے جاتا ہے۔ غیر مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی بیوی نے ہاتھ دیا ہوتا ہے، وہ چوڑیاں پہنا رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مرد دیوس ہے جس کے اندر اپنے گھر کی غیرت بھی نہیں، اللہ قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ مسلمان سارا ماہ رمضان اس کی عزت بھی کرے اور پھر آخری دن ختم کر دے تو پھر کیا فائدہ اس عبادت کا؟ بچے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 راتیں ایسی ہیں، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی۔ جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے نا، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو آج خوشی کا دن ہے، میرے بندے کس طرح مجھے خوش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں فرماتا کہ بازار والے، فرمایا مسجد والے مساجد میں آ کر عبادت کریں، مساجد میں باتیں نہ کریں، چغلیاں نہ کریں، غیبتیں، حسد، بہتان بازیاں نہ کریں، بلکہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ محبت کی باتیں کریں، درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کتنے بجے عید الفطر کی جماعت؟ کتنے بجے؟ انشاءاللہ 7:30 بجے عید الفطر کی جماعت ادا کی جائے گی۔ تمام حضرات وقت پر تشریف لائیے گا۔ اللہ ہم سب کو حضور کے دین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر 10 سے 15 منٹ حجۃ الوداع کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تاجدار ختم نبوت روزے رکھ دے، باقی عوام تو تھکی، تو سب تھکے بیٹھے ہوئے حد تک نہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نماز جمعہ پڑھی رمضان شریف ہے، جتی چاہتی گیا کہیں نمی مل گئی۔ مسلمان ہے نا ہم، کسی کی جوتی نہیں چھوڑنی، جو نہیں ہے وہ اٹھا کے جائے تاکہ عید اچھی ہو جائے۔ میں نے ایک جمعے پہ کہا بھئی یار ایسے نہ کیا کرو، مسلمان ہے، جوتیاں اٹھا کر چلے جاتے ہو، نماز پڑھنے آتے ہو، جوتیاں ہی ملیں گی پھر تمہیں۔ تو جمعے کا دن تھا، مغرب کی نماز میں نے پڑھی، واپسی جب دروازے سے باہر نکلا تو میری جوتی اٹھ گئی۔ آگے مولوی حوالہ آگ سے نوال تیری جوتی والی چاہ گئی سو، اور میں جوتی نوی پا دی کہنی ہے، میں کہا بابا یہ دا امام حسین الدغا بازی کرنا والے سب کتا ہی نہ چھوڑ لے، خدا دا نام منو، بابا جوتے اپنے پا دے گے کرو، تو سا نہیں دے وہ ہوندے بین لیکن خیال کی دا کرو، مطا آگو بھئی مولوی صاحب ساکو بیٹھا جیرا ٹائم دے نماز پڑھنا دے نا جوتے جامن کہنی آتا، جیرا ٹائم دے امام صاحب دی گالی سننے جوتے کہنی چاہتا، جیرا آخر جانے ہوں دا خیال کی دا کرو۔ تاجدار ختم نبوت رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو